Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. So here we are continuing our lecture with the optics. In this part we will see some problems on the wave optics which are based on the NCERT pattern. So let us start with the first question. Which of the following is the correct for the light diverging from a point source? The intensity decreases in proportion for the distance squared. The wavefront is parabolic. Or the intensity at the wavelength it doesn't depend on the distance or none of this. So ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ which of the ଏଇଟା ପଚାରୁଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଫର୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଡାଇଭର୍ଜିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ ଯଦି ଲାଇଟ୍ଟା ଡାଇଭର୍ଜ କରିଯାଉଛି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍କ୍ୱେର୍ ତ ଆଇ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ସ୍କ୍ୱେର୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲାଇଟ୍ଟା ଡାଇଭର୍ଜ କରିଯାଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ. The next question is, wavefront is the locus of all points where the particles of the medium vibrate with the same dash. This is the कौन एटा होची basically the definition you can say. Wavefront होची कौन ना this is the locus of all points where the particles of the medium it will vibrate with the same phase. Okay, so it will vibrate with the same phase. The next question. A plane wave passes through a convex lens. The geometrical shape of the wavefront that emerges is so this will be converging spherical. ठीक है जैसे कुछ गोटे प्लेन रे इट passes through जदि convex lens through रे pass करूची geometrical shape of the wavefront रो shape टा केमती होबो so this will be converging spherical. The next is the idea of the secondary wavelets for the propagation of a waves it was first given by secondary wavelet रो idea टा first किए देथिले न्यूटन मैक्सवेल हाइजेन और फ्रेस्नेल किए देथिले ना दिस इज योर हाइजेंस तो से आम कौन ना हाइजेंस प्रिंसिपल ये आमर स्टार्ट है ना देखो दिस इज योर हाइजेंस प्रिंसिपल सो ये जो वेव ऑप्टिक्स आछि सेकेंडरी वेवलेट्स तो मन थी जदि आम जो गोटे सोर्स नौ सो दीज आर सपोज टू डिफरेंट सोर्सेस सपोज S1 एंड S2 S1 रू सपोज गोटे वेव आसूची एंड S2 रू सपोज अनदर वेव स्टार्ट है तो देन जो वेवटा धीरे धीरे प्रोग्रेस करुँच तो ये कौन कर इट विल स्टार्ट इंटरफियरिंग विथ वन अनदर ठीक अच्छे तो ये जो इंटरफियर कर चलो तो पुणी अगेन ये जो सेकेंडरी वेवलेट जो फॉर्म हो तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरफियरेंस ठीक है व्हाट एवर से जहाँ भी ये तो जानी थे समस्ते सेकेंडरी वेवलेट हो कौन ना दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वे एंड इट सेकेंडरी वेवलेट फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द वे इट वाज फर्स्ट गिवन बाय हाइजेन. The next question. Spherical wavefronts emanating from a point source strike a plane reflecting surface. What will happen to these wavefronts immediately after reflection? से कौन कौन ना जदि आमर स्पेरिकल वेवफ्रंट आसूची गोटे पॉइंट सोर्स स्पेरिकल वेवफ्रंट जदि आसला से कौन कौन गोटे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस रे जदि स्ट्राइक कर माड़ हो देन व्हाट विल हैपन टू दिस वेवफ्रंट्स इमीडिएटली आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ताहले से कौन हम से वेवफ्रंट रो कौन हम जो रिफ्लेक्शन हम देन कौन हम सो दे विल रिमेन स्पेरिकल विथ द सेम कर्वेचर बट साइन ऑफ कर्वेचर रिवर्स्ड तो जेहेतु ये स्पेरिकल वेवफ्रंट रही तो सी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस रे जाकि कौन कर ना स्ट्राइक कर देन से स्टिल से कौन हम ना स्पेरिकल एंड विथ द सेम कर्वेचर बट द साइन ऑफ कर्वेचर इट विल रिमेन रिवर्स्ड ये कौन हम ना साइन ऑफ कर्वेचर रिवर्स हो. The next question. Light propagates rectilinearly due to light propagate कोची rectilinearly कौन पे ना wave nature और velocity और wavelength और frequency कौन पे इटा होची ना because of its wave nature. Light rectilinearly propagate कोची because of its wave nature. The next question is the phenomena which is not explained by the Huygens construction of the wavefront. देखिए reflection, refraction, diffraction और origin of spectra. Question ले जो the phenomena which is not explained which is not explained by देखिए देखो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ये सब एक्सप्लेन करते केवल ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्राटा एक्सप्लेन करना ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो यू को पार्ट स्टार्ट है ना रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन वेव यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल ठीक अच्छे मैंने वेव ऑप्टिक्स इज कंटिन्यू. Next question देखिए the wavelength of the spectral line coming from a distant star it shifts from 600 nanometer to 600.1 nanometer
velocity of the star relative to earth is ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ୱେଭଲେନ୍ଥଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଷ୍ଟାରର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ୱେଭଲେନ୍ଥ ତ ସେଇଟା କେତେ ହେଉଛି 600 ନାନୋମିଟରରୁ 600.1 ନାନୋମିଟର ହେଉଛି ତ ତାମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଅର୍ ଦ ସେ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ କେତେ କହିପାରିବା ନା ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି 600.1 ମାଇନସ୍ 600 ସୋ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ସିମ୍ପଲି 0.1 ନାନୋମିଟର ঠিক আছে ডেল্টা ল্যামডাটা আমি বাহার କରିଦେଲେ ওকে সে পচারছে କ'ଣ ভেলোসিটিটা কেতে হব না ସବୁବେଳେ রিলেশনটা মনে রাখো সো দিস ভেলোসিটি অফ দ স্টার হব কেতে না ভেলোসিটি অফ দ স্টার divided by the velocity of the light that will be equal to change in the wavelength divided by the original wavelength so जदि आम ये पुट करिवे सब तक वैल्यू आम कौन vs टा दरकार सो दैट इम्प्लाइज vs टा केते जो ना डेल्टा लैम्बडा होचे हमर केते डेल्टा लैम्बडा होचे हमर 0.1 so this is 0.1 divided the lambda value is केते ना 600 नानोमीटर थिले से कुछ कोन 600 नानोमीटर रु 600.1 नानोमीटर को शिफ्ट है सो ओरिजिनल होची केते ना 600 नानोमीटर थिले इनटू सी रो वैल्यू केते ना 3 × 10 पावर 8 खाली सी टा आसी की पडरे राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गला तो मोइटी जदी कैंसिल कोची सो दिस विल बी एटा 200 हे गला मु जदी 600 रे कैंसिल करी एठी गोटे डेसिमल थिला सो फाइनली या को कला पर ये केते आसीबो सो दिस विल 1/2 माने 0.5 तो तमाने 50 एठी होची 10 पावर 8 एठी होची गोटे 1/10 अछि सो एठी गोटे 0 कटले एठी दीटा तो तमाने मु एठी जदी 0 कैंसिल करबी त दीटा 0 ए 10 पावर 8 सेकंड कटि 10 पावर 6 हला ए डेसिमल टा कटि 10 पावर 5 सो दिस इज 1/2 माने 0.5 0.5 into 10 power 5 एटा मीटर रे थिला सो दिस इज बेसिकली we can say this is 50 kilometer एटी एमो किलोमीटर रे देछि ना सो बी केयरफुल तो दिस विल बी 50 किलोमीटर पर सेकंड तो देखिबो ना एटी कहबो कोन आंसर बाहरनी जबरदस्ती गोटे कोन आंसर लिखि ठीक है सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर दैट इज 50 किलोमीटर पर सेकंड बुझिला vs by c और v by c equal to del lambda by lambda this is your formula next question देखिए देखिए the 6563 angstrom H alpha line emitted by the hydrogen in a star is found to be redshifted by the 15 angstrom. The speed with which the star is receding from the earth is से कहि कोन हमर H alpha line जो अछि हाइड्रोजन रो the wavelength is 6563 angstrom and because of this से कहि कोन जदी रेड शिफ्ट हैला by the 15 angstrom रे शिफ्ट हैला से रेड शिफ्ट थाउ कि जहाँ भी माने एठी जणा पड़ो शिफ्टटा होची हम जो डेल्टा लैम्बडा अछि दैट इज द 15 एंगस्ट्रॉम शिफ्ट हो जाइछ ओके सो द स्पीडटा केते हो अगेन पचारछि तो अगेन हम कोन करबा देखो शिफ्ट माने कोन हम एक्चुअली लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा दैट इज द डेल लैम्बडा ना तो हम कोन करछुनी ना दिस हमर फार्मूला होची कोन हम पकुछुनी vs v जहाँ भी थिला प्रीवियस रे हम कोन v डिवाइडेड बाय c दैट इज इक्वल टू कोन डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा ये गोटे रिलेशन मन रखो डेल लैम्बडा माने होची कोन ना लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा सो एठी जदी हमर केते देछि एठी लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडाटा दे देछि डायरेक्टली 15 एंगस्ट्रॉम ठीक अछि तो मु एठी जदी खाली वैल्यू सब तक सब्स्टिट्यूट करबी सो दैट v विल बी इक्वल टू मते तो v ही दरकार ना v कैलकुलेट करे पे स्पीड विथ व्हिच द स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ देइतला तो डेल्टा लैम्बडा एठी देछि केते ना 15 एंगस्ट्रॉम 15 एंगस्ट्रॉम माने into 10 power minus 10 1 एंगस्ट्रॉम होजी 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 power minus 10 मीटर सो हमें कोन क्वेश्चन 10 power minus 10 मल्टीप्लाई कर सो डिवाइडेड बाय लैम्बडा लैम्बडा होजी केते ना 6563 एंगस्ट्रॉम सो दिस इज 6563 into 10 power minus 10 into हमर c टाइप आसी मल्टीप्लाई हे जिवो सो दिस इज 3 into 10 power 8 ताकू जदि हमें कैलकुलेशन करिबा दिस विल बी हमर केते आसीबो ना 6.87 into 10 power 5 निजे एटा कैलकुलेशन करी देख परियो तो बेसिक फार्मूला होची कोन ना v by c equal to del lambda by lambda so v will be equal to हमें खाली कोन सिंपली शिफ्ट होची माने change in the wavelength is this much divided by the original wavelength is this into the velocity of light is 3 into 10 power 8 so the final answer will be 6.86 into 10 power 5 meter per second ठीक अछि
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ए गैलेक्सी मूव्स with respect to us so that the sodium light of 589 nanometer it is observed at 589.6 nanometer the speed of the galaxies. अच्छा क्वेश्चन ने देछि कि तार गैलेक्सी जोटा अच्छी इट मूव with respect to us with the so that the sodium light wavelength of sodium light is 589 nanometer is observed at 589.6 ठीक अच्छे। तो पचार कौन स्पीड ऑफ द गैलेक्सी एकदम सेम क्वेश्चन किंतु एठी गोटे जिनस हूँ कौन देछि कौन एतिकी नानोमीटर थिले एतिकी नानोमीटर है 589 रु 589.6 सो ये डेल्टा लैम्बडा आम बाहर कर पारे दिस इज 0.6 नानोमीटर ठीक अच्छे। देन आम एगेन द सेम फर्मुला पुट करिकी आंसर कैलकुलेट कर पारे एटा मो स्किप कर जोटा सेम क्वेश्चन अच्छे मुझे करूनी। देन एगेन 11 नंबरटा भी सेम अच्छे जोटा अच्छी टी सेम टाइप निजे यहाँ कर देख मुझे 11टा कहूँ देख ए केस कौन देन द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर ए गिवन एलिमेंट ऑफ द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस स्टार इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ साइड बाय 0.025% ठीक अच्छे। द वेलोसिटी ऑफ द स्टार इन द लाइन ऑफ द लाइट देखो ये क्वेश्चन टिके जो सेम पैटर्न माने सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला विल यूज बट टिके चेंज हो ना खाली कौन कौन नहीं जो ये परसेंटेज फॉर्म रे देछि आ कुछ नहीं ठीक अच्छे। तो आम कौन जानूँ ना देख आमर फॉर्म एक्चुअली आम जो फॉर्मूला कहते फॉर्मूला कौन कि एक्चुअली आम जानूँ कौन न्यू लैम्बडा सी इक्वल टू आमर न्यू इंटू लैम्बडा सी इक्वल टू न्यू लैम्बडा और आम ये जब करवा कौन ना जदि आम बेसिकली कैलकुलेट कर बाय यूजिंग द डेरिवेटिव जदि मुझे बोथ साइड नेबी तो सी इज योर कांस्टेंट सो दिस विल बी बेसिकली फॉर द स्मॉल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ आई कैन राइट डेल्टा न्यू बाय न्यू दैट विल बी इक्वल टू एटी लैम्बडाटा पड़ू आसीगले दिस विल बी माइनस डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा और ये जो आम कैलकुलेट कर जदि वेलोसिटी ऑफ द स्टार इन द लाइन ऑफ लाइट आम जो कैलकुलेट कर तो ये केस आम हूँ कौन ना जो आम भीटा कैलकुलेट कर सो दिस इज नथिंग बट सिंपली आम जो भी बाई सी लिखुले डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा सो दिस विल बी सिंपली माइनस डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा ठीक अच्छे। तो आम 10 नंबर हो कि 11 नंबर हो आम वी विल यूज भी बाई सी इक्वल माइनस डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा एठी हूँ एक्चुअली कौन सी कौन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ साइड बाय 0.025% तो ताने मुझे जब देखी तो आमर वीटा हूँ कौन सो दैट इम्प्लाइज v विल बी इक्वल टू माइनस 0.025% माने सो दिस विल बी जदि आमर 0.025 शिफ्ट हो तो मैंने ओरिजिनल वेवलेंथ केते अछि दिस विल बी 100 into simply we have to multiply this c value that is 3 into 10 power 8 so या जब हमें कैंसल करिए फाइनली वी विल गेट माइनस 7.5 into 10 power 4 मीटर पर सेकेंड ठीक है। बेस किसी मोर डिटेल भीतर जाऊनी सो दिस इज सिंपली जदि आमको डायरेक्शन वाइज भी ऑल्सो कैलकुलेट कराए सो दिस इज सिंपली तार मैग्नीट्यूडटा हो के माइनस 7.5 into 10 power 4 मीटर पर सेकेंड ठीक है। ये पचार कौन ना द वेलोसिटी ऑफ द स्टार इन द लाइन ऑफ लाइट। The next question is the earth is moving towards a fixed star with a velocity of 30 km per second. An observer on the earth it observes a shift of 0.58 angstrom in the wavelength of the light coming from the star and the actual wavelength of the light emitted by the star is how much ठीक अच्छे से ये पचार एक्चुअल वेवलेंथटा केते हम देख सेम गोटे फॉर्मूला यूज होची खाली तार डिफरेंट क्वेश्चन पैटर्न टा हूँ डिफरेंट ए देखिए कौन ना आर्थटा मुव कर टुवर्ड्स द फिक्स स्टार गोटे स्टारटा फिक्सड अच्छी ता आड़ को फिक्स वेलोसिटी केते जाऊँ ना 30 किलोमीटर पर सेकेंड सो v इज गिवन 30 किलोमीटर पर सेकेंड एंड द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ इट ऑब्जर्व्स ए शिफ्ट ऑफ 0.58 एंगस्ट्रॉम तो तार ये जो शिफ्टटा अच्छे दैट इज डेल्टा लैम्बडा इज गिवन 0.58 एंगस्ट्रॉम ठीक अच्छे। सी आम जानूँ 3 into 10 power 8 सो एक्चुअल वेवलेंथ माने सी लैम्बडाटा पचार के देन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला दैट इज v बाय सी इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा ये कैलकुलेशन कर मेन उद्देश्य हो जिते अधिक प्रोब्लेम प्रैक्टिस कर सेते जल्दी फॉर्मूलाटा रिकॉल हम सो v विल बी इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा के 0.58 डिवाइडेड बाय लैम्बडा हमको कैलकुलेट कर सॉरी ये v तो ऑलरेडी गिवन दीजिए सो दैट इम्प्लाइज हमको लैम्बडा पचार सो लैम्बडा विल बी इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय v इंटू सी
ठीक अच्छे। सो दिस विल लैम्डा इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बाय v इंटू सी। तो डेल्टा लैम्डा इज 0.58 डिवाइडेड बाय v हूँ 30 इंटू सी हूँ के ना 3 इंटू 10 पावर 8। तो ये 3 गेट कैंसल विथ दिस 3 माने यहाँ कौन 30 थी ना, तो ये रहा 10, तो ये गोटे 10 ये गोटे 10 पावर गले यहाँ हूँ के 10 पावर 7। सो 0.58 माने ये गोटे 0 गले दिस विल बी 10 पावर 5। सो 58 इंटू 10 पावर 5 और दिस कैन बी रिटन एज এটা কেতে হব না 5800 आंगस्ट्रम। ठीक अच्छे। एबे देखो गोटे नुआ टाइप क्वेश्चन एबे एटा टिके अलग अच्छे से कहूँ कौन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज गिवन 1.5 माने म्यू देछि हमहु केते ना 1.5 से देछि फॉर द लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ इज गिवन आल्सो 6000 आंगस्ट्रम। वेवलेंथ होछि केते ना 6000 आंगस्ट्रम ना 6000 इंटू 10 पावर -10 मीटर। से कहूँ वेवलेंथ इन द ग्लास ग्लास रे तार वेवलेंथ रे केते पचार। तो आमे कोन जानछु म्यूटा हूँ कौन ना म्यू इक्वल टू सी बाय वी। ठीक अच्छे। तो एगेन मुझे यहाँ लिखुची आमर कौन सीटा हूँ आमर न्यू इंटू लैम्डा। सो दिस विल बी न्यू इंटू लैम्डा न्यू डिवाइडेड बाय वी जदि आम पकेबा सिमिलरली फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके। सो न्यू इंटू लैम्डा फॉर द ग्लास। सो दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट सो दिस विल बी लैम्डा जी ये न्यू न्यू गेट कैंसल लैम्डा जी विल बी इक्वल टू this will be lambda nu divided by mu। this will be lambda nu divided by mu ए mu टा आसिक डिवाइड हो जाए। सो दैट इज इक्वल टू ये लैम्डा टा केते देछि ना 6000 आंगस्ट्रम। सो दिस विल बी जेहेतु हमको आंगस्ट्रम रे आंसर टा बाहर करा अछि सो दिस विल बी 6000 डिवाइडेड बाय 1.5। सो 15 ने कैंसिल करले 4 एटा हला केते 4000 एठी गोटे 1.5 माने केते 15/10 थिला। सो दिस विल बी आमर आंसर केते हो ना 4000 आंगस्ट्रम। ठीक अच्छे। ये 6000 1.5 काटले के यहाँ हूँ 400। ओके एला 400 डेसिमल जो थिला तो यहाँ आसिक 1.5 माने के 15/10 गोटे 10 आसी मल्टीप्लाई हो गले 4000। ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट पार्ट आस कौटू ना कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेव्स। अच्छा देछि क्वेश्चन कौन ना दीटा लाइट वेव अच्छी दे आर सुपर इम्पोजिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन आर कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट विथ द फेज डिफरेंस ऑफ 3 पाई रेडियन। सो कहे दीटा लाइट वेव अच्छे गोटे आ गोटे ऊपर कौन कर सुपर इम्पोज कला। ठीक अच्छे। एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन आर कमिंग फ्रॉम द दे आर से कौन हो गोटे कोहेरेंट सोर्स रु लाइटा आसूची। बेसिकली देखो क्वेश्चन टाक ऊपर ऊपर पढ़ला भाया चेष्टा कर देखिए कौन फेज डिफरेंस दे देछि 3 पाई। ठीक अच्छे। तो मैंने फाइ आमको देछि केते ना 3 पाई दिस इज योर 3 पाई रेडियन। देन देछि कौन ना देयर एम्पलीट्यूड्स है 1 सेंटीमीटर ईच। तो ताने देखो ये पचार रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो जो रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड आसो तो ताने गोटे फर्मुला मन रखियो कौन ना रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड केमती कैलकुलेट करिया दिस इज इक्वल टू जेहेतु दीटा कोहेरेंट बीम अच्छी सो दीटा वेवलेंथ अच्छे कोहेरेंट सोर्स आसुची दीटा वेव आसुची। सो वी कैन राइट दिस इज फर्स्ट वेव रो एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर प्लस सेकेंड वेव रो होची a2 रो स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi होल रूट ओवर। ठीक है। दिस इज होल रूट ओवर एटा हो हमारा फॉर्मूला। तो a1 और a2 बोथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तमाने 1 स्क्वायर सो दिस विल बी 2 बुझु जी एठी 1 ये भी 1 सो दिस विल बी 1 + 1 हेला 2 प्लस एठी केते 2 1 * 1 होची केते 1 cos phi माने phi रो वैल्यू केते देथिले 3 पाई cos phi टा देछि 3 पाई। सो दिस इज cos 3 पाई पाई माने के 180 डिग्री। ठीक अच्छे। तो तार रूट हम cos 3 पाई टा केते हबो ना -1 सो दिस विल बी 2 -2 तार रूट हम सो दैट विल बी योर सिंपली 0। तो एम्पलीट्यूड केते हो ना 0 हो। सो हियर द आंसर विल बी 0। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी a1 स्क्वायर प्लस सॉरी एटा होची a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाइट फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड a and wavelength lambda it illuminates the screen। से कहूँ इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज I0 if the source with the incoherent the intensity at the same point will be। तो ये हूँ कौन सी कहूँ जेहेतु आमर कौन सोर्सटा कोहेरेंट अच्छी
जेमती आम आम्प्लीट्यूड लिखुं सेमती आम इंटेंसिटीटा आम जो लिखे कहीं इंटेंसिटी इक्वल टू कौन आम्प्लीट्यूड स्क्वायर सो दिस विल बी सिंपली I1 प्लस I2 इंटू सॉरी प्लस दिस विल I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 इंटू I2 रूट ओवर cos फाइ ठीक अच्छे। तो एबे आमर कौन हो ना आम जानचु कौन ना जदि आम कैलकुलेट करवा सो दिस विल बी I0 सपोज मुझे कैलकुलेट कर दिस विल बी I प्लस I प्लस 2y cos 0 टा हूँ आमर के cos 0 हूँ 1 सो दिस विल बी 2y ये I प्लस I सो दैट विल बी इक्वल टू 4i के 4i है पचार कौन ना देखले कि इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम टा जब I0 हुए सेंट्रल मैक्सिमम कौन फाइटा हूँ आमर 0 तो एगेन पचार इफ द सोर्स आर इनकोहेरेंट जदि इनकोहेरेंट सोर्स हो तो सही केस द इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट कौन हम जदि इनकोहेरेंट हो then simply you have to remember IR will be equal to कौन ना I1 plus I2 so this will be I1 plus I2 I1 plus I2 मैंने कौन ये भी I है this will be equal to 2y और this is equal to मो I जगह जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करी so this is simply equal to 4i by 2 और दैट इज माने ये आम 2i टाक मुझे लिखुची कौन ना 4i by 2 कहीं ना मुझे 4i जगह सिंपली सेंट्रल मैक्सिमम I0 पुट करी सो दिस विल बी इक्वल टू I0 by 2 ठीक अच्छे 2i आमर आंसर आसला तो आम ये कौन 4i टा मत दरकार मुझे I0 वैल्यू पुट करी सो गोटे 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिस इज योर 4i by 2 4i वैल्यू I0 डिवाइडेड by 2 सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर I0 by 2 तो तामाने जदि आमर इंटेंसिटी पचारि देन यू हैव टू राइट I at the resultant intensity will be equal to the sum of its intensity plus 2 I1 I2 root over cos phi. Then let us see the next question. This is interference of the light waves and Young's experiment. ठीक अच्छे ये पार्टा देखा है क्वेश्चन दूसरी and Young's double slit experiment it uses a monochromatic source of light. Shape of the interference fringes formed on the screen is सी कौन जदि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जदि मोनोक्रोमेटिक सोर्सटा हूँ आम ना मोनोक्रोमेटिक अच्छी सिंगल वेवलेंथ अच्छी सो द सेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजर सेपटा कौन हम ना सब मन रख यहाँ कौन हम ना हाइपरबोला हम दिस इज मोस्ट यंग्स डबल स्लिट्र आसी मैंने पार्टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके ये जिते सब क्वेश्चन करवा यंग्स सब तक इंपोर्टेंट देखिए कौन ना नेक्स्ट क्वेश्चन द टू स्लिट्स आर मेड 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. The fringe separation when the blue green light of wavelength is 500 nanometer is used ता मैंने केते तो एठी पचाची को फ्रिंज सेपरेशन पचाची माने हम कोन बिटा पचाची तो समस्त एठी फॉर्मूला जेहेतु जानि जो मु डायरेक्टली लिखुची बिटा होची केते ना बिटा विल बी इक्वल टू d lambda divided by the small d अच्छा एक कैपिटल D स्मॉल d कौन ना देखो जतल दीजिए दीटा स्लीट भितर टू स्लीट्स आर मेड ऑन दीटा स्लीट अच्छी दिस इज वन स्लीट सपोज दिस इज अनदर स्लीट ठीक अच्छे तो आम जो दीटा स्लीट रहा तो तांको भितर जो डिस्टेंसटा रही दैट इज योर केते अच्छी ना दैट इज हूँ केते ना 1 मिलीमीटर माने दिस इज योर 1 into 10 power minus 3 सो मोर ये डी जगह केते पकेबी ना 1 into 10 power minus 3 ठीक अच्छे again this screen is placed 1 meter away एठी जदि मोर स्क्रीन अच्छी so this distance is your capital D that is केते ना 1 meter into the wavelength केते ना 500 so this will be 5 into 10 power minus 7 meter कहना 500 माने केते 10 power minus 9 meter multiply करथां नानोमीटर माने so this 500 into 10 power minus 9 एठी 500 रो दीटा 0 पळेले so this will be simply 5 into 10 power minus 7 ये 10 power minus 3 ये minus 7 कटले minus 4 so this will be 5 into 10 power minus 4 meter और this will be 0.5 mm ठीक अच्छे so this will be our correct answer ठीक अच्छे बीटा इक्वल टू d lambda by d और d टा होची कैपिटल D इज योर डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन भीतर डिफरेंस होची कैपिटल D और दीटा स्लिट भीतर डिफरेंस होची स्मॉल d so बीटा इक्वल टू कैपिटल D lambda डिवाइडेड बाय स्मॉल d नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए a parallel beam of sodium light of wavelength this is your 5890 angstrom it is incident on a thin glass plate
of refractive index 1.5 such that the angle of refraction in the plate is 60 degree. The smallest thickness of the plate which will make it dark by the reflection. अच्छा से क्वेश्चन कोची कौन ना देछि सोडियम लाइट रो वेवलेंथ इज गिवन से आमु एठी बेसिकली कौन कैलकुलेट कराछि ना मिनिमम थिकनेस केते हबो फॉर द डार्क बैंड ठीक अछि ए पचाछि ना डार्क बैंड भाई आमर मिनिमम थिकनेस केते हबो सो दिस इज आवर फॉर्मूला दैट 2 mu t cos r that is equal to lambda जेती सब फॉर्मूला कहूँ दैट इज योर इंपोर्टेंट 2 mu t cos r equal to lambda और एठी जे तुम थिकनेस पचाछि सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t that is sorry that is lambda divided by एठी केते हबो 2 mu cos r डिवाइड हबो 2 mu cos r वेवलेंथ केते देछि ना 5890 into 10 power minus 10 angstrom रे जेतु देछि again divided by the refractive index is given 1.5 so this is 2 into mu जगह 1.5 into cos r refraction in the plate केते अछि ना 60 degree so this will be cos 60 degree ठीक अछि एबे जदि हम सब तकर वैल्यू पुट करबा सब वैल्यू पुट हिचे cos 60 रो खाली हम वैल्यू पुट कर देबा सो याकू तापर आंसर फाइनली कैलकुलेट करले t रो वैल्यू केते आसे जोटा सिंपल कैलकुलेशन करी हो आ सेगुडा करनी मु सो दिस विल बी एक्चुअली एटा केते हो cos 60 टा 1/2 तो एटी 2 1/2 कटले 5890 डिवाइडेड बाय 1.5 करियो जदी दिस विल बी 3926 आंसर सो आंसर केते हो ना दिस विल बी 3926 आंसर again the next question this in a double slit experiment using light of wavelength 600 nanometer the angular width of a fringe on the distance strain is 0.1 degree spacing between the two slit okay एठी हमरो कोन देछि ना angular width of the fringe थीटा टा होछि केते देछि ना 0.1 डिग्री देछि सो 0.1 डिग्री को हम जदि रेडियन ने कन्वर्ट करे दिस इज सिंपली 0.1 into pi by 180 एटा कोन हमरो रेडियन हे गेला ओके दिस इज योर रेडियन थीटा रे वैल्यू दे देला वेवलेंथ हमकु देछि केते ना वेवलेंथ इज गिवन 600 नैनोमीटर माने 6 into 10 power minus 7 मीटर हम पचाछि कोन ना स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट तो स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट जो पचाछि देन यू हैव टू कैलकुलेट द d टा होछि केते ना लैम्बडा डिवाइडेड बाय थीटा d होछि केते ना लैम्बडा बाय थीटा ए सब इंपोर्टेंट फॉर्मूला सो दिस इज इक्वल टू 6 into 10 power minus 7 डिवाइडेड बाय थीटा रे वैल्यू केते ना 0.1 into pi by 180 याकू निजे कैंसिल करिवो तापर याकू सॉल्व करला पर सो द फाइनल आंसर विल बी एठी हम जदी d रे वैल्यूटा कैलकुलेट करबा सो हमर फर्स्ट आंसर दैट इज 3.44 into 10 power minus 4 मीटर अगेन लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एटा तो सब बेले आसे कह गले है एटा सब बेले देखो सब परीक्षा ये क्वेश्चन पक्का ये जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड रो क्वेश्चन आसथिबो देखिए रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा तो आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम in the interference experiment is given that is 25:9 that is 25/9 से पचार रेशियो ऑफ द वुड्स ऑफ द टू स्लिट वुड्थ पचार ठीक अच्छे तो फर्स्ट कथा कौन ना आम फास्ट आम्प्लीट्यूडटा कैलकुलेट करिया जेहेतु इंटेंसिटी देछि फ्रॉम दिस इंटेंसिटी रिलेशन तो ये मैक्सिमा बाय मिनिमा माने दीटा a1 प्लस a2 रो होल स्क्वायर देछि डिवाइडेड बाय मिनिमम माने a1 माइनस a2 रो होल स्क्वायर सो मो कंबाइनली ए पार्ट रो होल स्क्वायर लिख दूछि so this is equal to 25/9 एडी स्क्वायर टा जदि मु रिमूव करेबी सो दिस विल बी सिंपली कोन हे जो एटा मु स्क्वायर टा रिमूव करेबी माने एपट साइड रो कोन हे जो रूट ओवर हे जो 25/9 रो रूट ओवर होची केते ना 25 रो रूट ओवर होची 5 रूट ओवर 9 होची केते ना 3 सो दिस विल बी केते ना 5/3 ठीक होची गोटे मिनिट एटा देखते 5/3 हो गला तो एबे हमें कौन करबे ना मु सिंपली a2 टा को जदी थ्रू आउट रे डिवाइड कर देबी सो दिस विल बी a1 by a2 मु काहे डिवाइड करल तुम जानि परियो a1 by a2 plus 1 डिवाइडेड बाय दिस विल बी a1 minus a2 minus 1 एदी गेला सो दैट इज इक्वल टू केते ना 5/3 एटा हला केते 5/3 गेला सो नाउ एठी हमें देखिया को ना याकू मु जदी सॉल्व करूची सो दैट इंप्लाई एटा होची केते 5/3 होची so that implies
एठी देखो मु a1/a2 कौन वैल्यू पकेले 5 आसीबो ना सिंपली एटा कोन 4 पकेले 5 आसीबो कहीं मु एठी जदी 4 रु 1 सबट्रैक्ट करबी 3 4 रु 1 मिसेले 5 तो फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट a1/a2 टा हमर केते हो ना 4 सो a1/a2 दैट इज इक्वल टू 4 हे गेला पछाची कोन विड्थ ऑफ द टू स्लिट पछाची तो विड्थ ऑफ द टू स्लिट केते हो ना d1/d2 हो जी a1/a2 स्क्वायर माने a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर एडी 4 अछि माने केते 4/1 अछि ना सो दिस विल बी सिंपली 16/1 रेशियो पछाची माने 1 थाउ कि न थाउ निजे 1 लिखिबो एंड यू कैन चेक द आंसर हियर so this is your 16:1 so this is our correct answer ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो देखिए इन Young's double slit experiment the slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed at 1.4 meter away the distance between the central bright fringe is measured to be 1.2 centimeter then the wavelength of the light used in the experiment is अच्छा एठी जो देछि Young's double slit experiment रे हमें यूज करछनी सेपरेशन देछि 0.28 मीटर तो फ्रॉम दिस रिलेशन जदि हमर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होछि सो x विल बी इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय D ठीक अछि नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट हम एठी सब वैल्यू दे देछि डबल स्लिट रे द slits are separated by मोठी लिख दूची हमको कौन दे दीची slits are separated by 0.28 so हमको small d एटा देची 0.28 again screen are placed 1.4 meter away so this is your capital D is given the distance between the central bright fringe are measured to be 1.2 centimeter so here the x is given 1.2 centimeter wavelength of the light पचाची माने lambda हमको पचाची so एठी हमर lambda जेतु पचाची lambda equal to this is x into d divided by n capital D ठीक अछि this is your n into capital D x रो वैल्यू केते देछि ना 1.2 so this is 1.2 into 10 power minus 2 meter so d रो वैल्यू केते ना 0.28 mm so this is 0.28 into 10 power minus 3 meter divided by n टा होछि केते ना n टा होछि हमर 4 ठीक है n टा सपोज हमर 4 तो नाउ दिस इज इनटू कैपिटल D होछि 1.4 मीटर याको हम जदी कैलकुलेशन करिया फर्दर तो याको सॉल्व कला पर हमर केते आसो ना 6 into 10 power minus 7 मीटर तो मो कैलकुलेशन एथि पे करनी कहिना परीक्षा जेतु पाखरे हेलनी पूरा ए सब कैलकुलेशन करे टाइम वेस्ट करियाटो बेहतर होछि कोन ना निजे खाली फार्मूला रिकॉल करो दैट इज n लैम्बडा d by d ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो देखिए in case of the light waves from two coherent sources S1 and S2 there will be constructive interference at an arbitrary point P the path difference S1P minus S2P is अच्छा एठी जो पछाजी जदी हमर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होची S1 एठी तमरे कोन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस S1P minus S2P जोटा देछि एटा होची कोन then the path difference when the constructive interference occur then the path difference S1P minus S2P this is the integral multiple of lambda or this is equal to n lambda we can say or एठी n रो वैल्यू केते 0 1 2 3 4 so on so एठी पछला S1P minus S2P केते ना this is your n lambda जदी constructive interference होची again the next question देखिए interference fringes are produced in the Young's double slit experiment, wavelength of light is given, and when a film of material this 2.5 into 10 power minus 3 centimeter thick was placed over one of the slit, the fringe pattern shifted by the distance equal to 20 fringe widths. The refractive index of the material of the film पचाची केते ना mu टा पचाची ओके तो ये क्वेश्चन आमे एक्चुअली कोन करबे ना दिस इज इक्वल टू फर्स्ट हमको जेहेतु फ्रिंज विड्थ टा अछि सो एटी जो फ्रिंज पैटर्न शिफ्टेड बाय दिस मच जहाँ भी देछि सो यू नो बीटा इक्वल टू लैम्बडा d by d ठीक है बीटा टा होछि कोन हमर फ्रिंज विड्थ तो से कोछ कोन व्हेन ए फिल्म ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is placed over one of the slit so हमर कोन होछि ना फ्रिंज पैटर्न टा शिफ्ट करछि बाय द डिस्टेंस s so we can write here suppose s लिखु जने हमें
So fringe pattern is suppose shifted by the distance s. So this s will be equal to mu minus 1 whole into t capital D divided by the small d. We can write like this. So आमको एठी जो रिलेशन देछि कोन ना एठी देथिले एठी देखो क्वेश्चन भलसे पढ़ो ए टिके माने भलो लेवल लो क्वेश्चन से कहछि द फ्रिंज पैटर्न शिफ्टेड बाय द डिस्टेंस इक्वल टू पैटर्न ना कोन हो जे 20 फ्रिंज विड्थ थे जाउ सो हियर इट इज गिवन दैट दिस s इक्वल टू 20 बीटा s रो वैल्यू के दे देछि ना 20 इनटू बीटा तो एठी हम जदी दीटा को रिलेशन कंपेयर करबा सो दिस विल बी आई कैन राइट एठी हमर कोन d बाय d जगह बीटा बाय लैम्डा मु लिख परबी सो दिस d बाय d इज नथिंग बट योर बीटा बाय लैम्डा so from this relation I can write this mu minus 1 into t that is equal to s रो वैल्यू हमर कोन अछि ना सपोज दिस s इज हमर के दे देछि 20 बीटा एठी एक्चुअली हम रिलेशन केमति कैलकुलेट करछन जदि मु एठी d बाय कैपिटल d बाय d एंड एठी कैपिटल d बाय d टा को राइट हैंड साइड रे खाली रखी सो देन जदि मु दिटा इक्वेशन कंपेयर कर एठी d बाय d टा के फ्रॉम दिस रिलेशन दिस इज बीटा बाय लैम्डा सो दिस इज इक्वल टू केते हिजु ना s डिवाइडेड बाय d बाय d टा केते s फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन d बाय d केते ना s बाय mu minus 1 into t बुझियला तो एठी हमें s टा केते ना s जगह हमें 20 बीटा नोचुनी सो दिस इज माय 20 बीटा ठीक है या जगह 20 बीटा नेले सो बीटा बीटा गेट कैंसिल सो आई कैन राइट mu minus 1 into t this is equal to 20 lambda I can write so this is equal to 20 into lambda ठीक अछि so that implies एठी हमहु जहा सब वैल्यू देछि मु जदि एठी पुट कर जी so this is mu minus 1 that is equal to 20 lambda by t so 20 into lambda जगह रे के दे 5000 into मु कोन लिखुछि ना 10 power minus 8 centimeter divided by t टा केते ना 2.5 into 10 power minus 3 centimeter याको हम जदि फर्दर कैलकुलेशन करबा सो दिस इज इक्वल टू केते ना 0.4 और आमे लिख परिया कोन ना म्यू रो वैल्यू केते ना 1 plus 0.4 सो दिस विल बी 1.4 तो एठी हम आंसर देखो सो दिस विल बी कोड होला हमर हां ए क्वेश्चन ना सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो जेतु सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट मु एठी मैक्सिमम सब तो करिया चेष्टा करूची टिके टाइम लगो पछे टिके भल से करिकी गले बेटर देखि दीटा बीम अछि लाइट हैव इंटेंसिटीज i एंड 4i तो गोटे i1 देछि i एंड आ गोटे i2 देछि हमर 4i ठीक अछि तो देन देछि कोन फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम होछि गोटे π/2 आ गोटे होछि केते ना π तो हमर φ1 टा देछि केते ना π/2 एंड φ2 टा केते देछि ना π ठीक अछि सो द इंटेंसिटी हम जदि कैलकुलेट करछन सो द डिफरेंस बिटवीन the result and intensities sorry the difference between the result and intensities at a and b तो फर्स्ट कथा कोन ना हमें result and intensity for the first I a पई बाहर करबे देन I b पई बाहर करबे सो I एटा हो कोन ना I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos phi हमें जानछु हमर रिलेशन होचे तो ये कौन सिंपली सब वैल्यू तो देछि i देछि i1 देछि i2 देछि i प्लस i केते 4i प्लस i हला केते 5i प्लस 2 into i into 4i हमें जेटी सब तो पुट करे जदी एटा केते हला 5i प्लस दिस विल बी 2 into i into 4i root over cos your 5 टा एटी हमर 5 टा फर्स्ट पुट करबे सो 5 इज आवर π/2 सो cos π/2 ठीक है cos π/2 टा के 0 सो दिस इज सिंपली आवर 5i सिंपली निजे एठी कोन कर परियो ना i b टा को भी कैलकुलेट कर परियो i b कोन हो ना i b रे सब सेम रहइबो ठीक है एठी हमर i b रो जो वैल्यू टा अछि एटा सब तक सेम रहइबो किंतु कोन ना देखो i1 i2 सेम रहइबो खाली फाइ टा चेंज होछि पाए रे तो cos π टा होछि केते -1 सो एठी कोन होछि ना एठी जदि मु कैलकुलेशन करबी i1 + i2 केते हला 5i बुझुछि एठी 5 जगह खाली 5 लिखिबी तो एटी कौन रहा प्लस 2 रहा i1 into i2 के 4i into i हेले सो 4 रूट ओवर 2 i स्क्वायर रूट ओवर हो जाए सो दिस इज बेसिकली केते ना 4i 2 into 2 केते गेला 4i हे गेला सो मेठी जदि लिखबी दिस इज 4i into cos एटी केते ना पाई अछि पाई माने -1 सो एटी -1 अछि तो 5i - 4i केते गेला ना i बुझुछि तो एठी हमें सिंपली 2i1 i2 रूट ओवर cos phi2 पुट कोछन तो phi2 टा मु देछि पाई
तो ताकू जब आम पुट करिए सिंपली आई बी विल गेट आई तो पचार आई ए माइनस आई बीटा के तो डिफरेंस इन आई ए एंड आई बी दैट इज द इंटेंसिटी पचारे सो 5 माइनस आई हम के 4 आई सो दिस इज अवर आंसर तो सेम क्वेश्चन टिके खाली जस्ट फर्दर प्रोसीड करी जदि पचारि देन यू कैन सॉल्व इन दिस वे नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन जहाँ भी सब यंग्स डबल स्लिटर बहुत कॉमन क्वेश्चन आ सब आसे पूरा रिपीटेडली आसे देखिए गोटे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज 10 टाइम्स ठीक अच्छे तो आमको ये क्वेश्चन देला मैंने डायरेक्टली लिख बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी सब स्मॉल डी माने स्लिट डिस्टेंस कैपिटल डी माने स्लिट आउ स्क्रीन माने जो आम फ्रिंजटा आम देखा या भर डिस्टेंसटा हूँ के कैपिटल डी ठीक अच्छे दिस वन इज यू स्मॉल डी ये मन रखी चलो आउ कुछ दरकार नहीं ओके सी दूसरी कौन ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट डी इज इनक्रीज 10 टाइम्स तो आमर सपोज डी प्राइम अच्छी इट इज इनक्रीज के ना 10 टाइम्स इनक्रीज होगा फिर एज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन माने कैपिटल डीटा हूँ कते ना डी प्राइमटा हूँ के ना कैपिटल डी बाय 2 हाफ होगा तो ये आमको कौन अच्छी ना आमको बीटाटा बाहर करने अच्छी सो इफ आई कैलकुलेट द बीटा सो वी कैन कैलकुलेट हियर द बीटा प्राइम सो बीटा प्राइमटा आमर कौन हम डी प्राइम लैम्डा रे तो कौन से चेंज है लैम्डा डिवाइडेड बाय डी प्राइम सो डी प्राइमटा केते होची ना डी बाय 2 इंटू लैम्डा रहिला सेमती डिवाइडेड बाय स्मॉल डीटा केते होची ना 10 डी सो दिस इज योर 10 डी सो केते हो सो दैट इज इक्वल एटा हैला केते 20 हैला सो दिस इज डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी एटा केते 1 बाय 20 होची this is your 1 by 20 into this much this d lambda by d is nothing but your beta the final answer will be that is equal to 1 by 20 into beta so amar kon hobo na beta fringe width ra kon hobo na 1 by 20 times so it becomes 1 by 20 and the next question is a laser beam is used for locating the distant objects because so eta kon hobo na jehetu taro angular speed small thae ei jo angular speed ta small hoji so because of that reason आम लेजर बीम यूज कर सो सिंस इट हैज ए स्मॉल एंगुलर स्प्रेड सो द लेजर बीम इज यूज फॉर द लोकेटिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द फ्रिंज विड्थ इन ए यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न इज दिस मच बीटा इज गिवन ओके if when a red light of wavelength this much is used माने लैम्डा जदि एतिकी यूज होइची then how much will it change if the blue light of the wavelength से कुछ जदि लैम्डाटा आम रेड लाइट यूज कर तार बीटाटा हूँ एतिकी जदि आम ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ माने लैम्डा बीटा सॉरी लैम्डा बी जदि ब्लू लाइट माने ब्लू लिखुची बी लैम्डा बी जदि यूज कर देन आमको हाउ मच विल इट चेंज माने बीटाटा पचार के तो आम कौन जानूँ बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी ठीक अच्छे तो ताने कौन बीटाटा हूँ कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा सो सिंपली मुझे ये लिखी बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा सो आई कैन राइट बीटा 1 by बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2 ठीक अच्छे बीटा 1 by बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2 तो आमर हूँ कौन दीटा लाइट यूज कर गोटे हूँ रेड लाइट तो रेड लाइट पे यहाँ हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिमिलरली ये फॉर द ब्लू लाइट आई कैन राइट दिस इज योर दिस मच ठीक अच्छे तो ये सिंपली कौन कराची ना सबुतक भैल्यू दे देती आमको कौन पचार बीटा बी पचार यहाँ पचार सो बीटा बी विल बी इक्वल टू केते जो ना बीटा आर रेड लाइट वेवलेंथ बी डिवाइडेड बाय लैम्डा आर ठीक अच्छे जहाँ सब भैल्यू देछे हमें जब पुट करदे वी कैन कैलकुलेट द आंसर सो ये निजे कैलकुलेट कर देखिपर सो या आंसर के ना 0.9 इंटू 10 पावर -4 मीटर द नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो खाली पचार यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखिए दीटा टू डिस्टर्बेंसेस अराइविंग एट पॉइंट पी have phase difference दे दीजिए π/3 है देखिए द इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोटिस तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कथा कहूँ सो आई विल बी इक्वल टू सॉरी ये आमर आईटा हूँ के आम जानूँ आई इक्वल टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई नॉट cos स्क्वायर π/2 ठीक अच्छे तो सी कौन कौन ना आई नॉट ये हूँ कौन मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइटा आमको कौन π/3 सो जो फाइटा π/3 हम मुझे जो डायरेक्टली लिखुची सो दिस विल बी π/6 ठीक अच्छे cos π/6 हूँ के √3/2 सो ये मैंने के आई नॉट इंटू √3/2 स्क्वायर माने यहाँ हूँ √3/2 स्क्वायर
सो √3/2 स्क्वायर मैंने 3/4 आई नॉट। तो ये आंसर के ना 3/4 आई नॉट। ये खाली करार अच्छे पचार इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ आई रो रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू द आई नॉट। सो दिस विल बी केते हबो 3/4 ऑफ आई नॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज टू स्लिट्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वुड्थ रेशियो दे देछि, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड पचार। ठीक अच्छे। सो β1/β2 इज गिवन दैट इज इक्वल टू I1/I2। तो ये के ना 81 डिवाइडेड बाय 1 रेशियोटा हूँ देखिए रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूडटा हूँ कौन ना एम्पलीट्यूडटा जेहेतु इंटेंसिटी कौन एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो एम्पलीट्यूडटा कौन इंटेंसिटी रूट ओवर। सो दिस इज रूट ओवर ऑफ दिस मच। तो 81/1 रूट ओवर है के 9/1। सो दिस इज योर 9:1 इज योर करेक्ट आंसर। बुझे मैंने ये सब तक इंटरलिंक्ड आउ किसी एमती रॉकेट साइंस अच्छे सेमती किसी ना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए when a low flying aircraft passes overhead, we sometimes notice a slight shaking of the picture on our TV screen. This is because of the between the direct signal and the reflected signal it interference। जेहेतु इंटरफियर कर जाऊँगी तो से कौन हो जो गोटे आम लाइट माने गोटे एयरक्राफ्ट जदि जस्ट टिके माने पाखापाखि जदि पास कर जाऊँगी तो से कौन हो ना जो टीवी स्क्रीन जो पिक्चर आसता से स्लाइटली स्टेक हो जाए। ओके माने टिके हली जाए। The next question is Young's double slit experiment electron beam is used to obtain interference pattern. If the speed of the electron decreases then से कौन हम ना डिस्टेंस ये पचार कौन हम डिस्टेंस कौनटा चेंजेस हम। तो ये केस कौन हम ना द डिस्टेंस बिटवीन दुटा कन्सिक्यूटिव फ्रिंजटा कौन हम ना इंक्रीज कर। ठीक है कहीं बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d and also we know lambda equal to h/mv। So from that relation we can calculate the distance between the दुटा consecutive fringe कौन हम ना increase हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जदि भी दुटा पार्ट हो देखिए कर एटलिस्ट ट्राए कर पार्टा जमी पूरा कंप्लीट करने। ठीक है यहाँ ही बहुत ही इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे ये पार्टा बहुत इंपोर्टेंट। देखिए इन ए टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ द मोनोक्रोमेटिक लाइट fringes are obtained on a screen placed at the some distance from the plane of the slit। से कौन जदि स्क्रीनटा 5 × 10⁻² मूव कर जाऊँगी टुवर्ड्स द स्लिट चेंज इन द फ्रिंज विथ चेंज हो ना दिस मच। जदि डिस्टेंसटा एति अच्छी देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइटटा के देख फास्ट कथा आम कौन जानूँ बीटाटा हूँ लैम्डा d/d। तो सी ये जो चेंजेस इन द कह कौन फ्रिंज विथ चेंज हो। ठीक अच्छे चेंज इन द फ्रिंज विथ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो ये आम क्वेश्चन भलसे पढ़ फ्रिंज विथ चेंज हो माने डेल्टा बी। सो डेल्टा बीटा दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट जेहेतु आमर कौन कन्स्टांट लैम्डा और डी तो कन्स्टांट तो चेंज हो कौन ना डेल्टा कैपिटल डी रे चेंज हो। सो ये आमको लैम्डाटा बेसिकली कैलकुलेट करा कही सब वैल्यू दे देछि। डेल्टा बीटा के ना 3 × 10⁻8 डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट के 10⁻3। सो दिस इज योर 10 10⁻3 इज गिवन। सो यहाँ डेल्टा डी रही के ना 5 × 10⁻²। तो ये पकई सब कैलकुलेशन कलापर आमको आसो के 6000 आंसर। ये फ्रिंज विड्थ शिफ्ट मैंने डेल्टा लैम्डा यहाँ। ठीक अच्छे जो स्क्रीन मूव होती 5 × 10⁻² देती। सो दिस 5 × 10⁻² इज नथिंग बट योर डेल्टा डी एंड ये जो देती 10⁻3। सो दिस इज नथिंग बट ये जो 10⁻3 देती दैट इज योर स्मॉल डी। अच्छा सॉरी मुझे लिख देती। सो दिस इज योर स्मॉल डी हूँ आम के ना 10⁻3। तो आमर ये बेसिकली लैम्डाटा हूँ कौन कि लैम्डा हूँ डेल्टा बीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी। यस ठीक अच्छे। तो ये जो 10⁻3 डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। ठीक अच्छे डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट मैंने स्मॉल डी दुटा स्लिट भितर डिफरेंस हो स्मॉल डी। तो ये जब आम सब तक वैल्यू पुट करदे सो विल कैलकुलेट द आंसर विल बी 6000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दुटा मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ एम्पलीट्यूड दे दी 3 एंगस्ट्रॉम सॉरी 3a 2a and interfering at a point having phase difference of 30 degree sorry 60 degree intensity at that point will be proportional to intensity पचार कौन हो। फास्ट कथा कौन आम resultant amplitude देखिए। सो द resultant amplitude will be केते a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। so this is plus 2a1 a2 and the whole root over। ठीक अच्छे। तो ये a1 a2 जगह के ना 3a है माने
3 स्क्वायर हो 9a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माने 4a स्क्वायर प्लस दिस विल बी 2 इंटू 3 इंटू 2 के 12 a स्क्वायर इंटू कॉस फाइव हो 60 डिग्री माने हाफ हाफ हेल्ले ये डायरेक्टली मुझे लिखुची 6a स्क्वायर हो गला सो दिस इज 6a स्क्वायर रूट ओवर सो 9 प्लस 4 13 13 प्लस 6 18 9 प्लस 4 13 प्लस 6 19 a स्क्वायर रूट ओवर हो ना सो दिस इज रूट ओवर 19 इंटू ए स्क्वायर हो के ये आम कौन बाहर एम्प्लीट्यूड बाहर आमको कौन दरकार इंटेंसिटी पचार ना इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट सो द इंटेंसिटी केते हम ना प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी सब एम्प्लीट्यूड स्क्वायर ठीक अच्छे ये जो आम रेजल्टेंट एम्प्लीट्यूड बाहर सो दिस विल बी 19 a स्क्वायर सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर यार सिंपली स्क्वायर ना जदि दिस विल बी 19 a स्क्वायर then the next question consider the following statement in case of the Young's double slit experiment a slit AC अच्छा ये सब जहाँ भी देजी कोच कोटा ठीक होगा slit AC is necessary if we can use the ordinary extended source of light this one is correct a slit AC is not needed if we can use ordinary but well collimated yes जो हमको slit दरकार नहीं जदि हमारा well collimated beam of light अच्छी हमको दरकार नहीं A slit AC is not needed if you use a spatially coherent source of light. This one is also correct. Then the next question is the colors seen in the reflected white light from a thin oil film are due to. এটা कौन पे होची ना because of the interference. Okay. ये जो next question देची एटी देखो एक क्वेश्चन देची कौन गोटे येलो लाइट यूज हैला एतिक एंगस्ट्रॉम रो प्रोड्यूसेस फ्रिंज विथ दिस मच if the source is replaced by another monochromatic source of light wavelength this separation is doubled then the fringe width कौन हो तो तामने कौन आम गोटे बीटा देची लैम्डा डी बाय डी एति देची दीटा वेवलेंथ अलग ठीक अच्छे सो दिस इज लैम्डा 1 लेट मी राइट दिस इज लैम्डा 1 डी डिवाइडेड बाय डी एंड आ गोटे बीटा 2 टा के देची ना लैम्डा 2 डी बाय डी ठीक अच्छे आम खाली सोर्स वेवलेंथ टा को डिफरेंट नौ बाकी जहाँ सब सेम अच्छे तो आमको बीटा 2 बाय बीटा 1 टा कैलकुलेट करा अछि सो यू कैन कैलकुलेट इट देन नेक्स्ट क्वेश्चन देछि जदि स्लिट इफ द स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर इल्यूमिनेटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इफ द पाथ डिफरेंस एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज 0 व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर द लाइट फ्रॉम द स्लिट एट द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ठीक अछि एठी जो क्वेश्चन देछि एटा कोन देछि से कहछि पाथ डिफरेंस एट द सेंटर इज 0 एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज पे होछि केते ना 4 लैम्डा तो एठी लैम्डा देछि केते 6000 एंगस्ट्रॉम तो पाथ डिफरेंस टा होची कौन ना दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 6000 इंटू 10 पावर माइनस 10 सो यहाँ के 4 इंटू यहाँ हूँ 6 है 24 इंटू 10 पावर माइनस 7 और दिस इज 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर मैंने ये क्वेश्चन किसी ना ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखिए द टू सोर्सेस ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2500 angstrom and 3500 angstrom they are used in the Young's double slit experiment simultaneously अच्छा दीटा को एकाठी हिच which orders of fringes of the two wavelength pattern coincide से कुछ को पैटर्न टा coincide करबो अच्छा देखो सपोज nth ब्राइट फ्रिंज होची 2500 आउ सपोज n - 2th ब्राइट फ्रिंज होची केते ना 3500 इज गिवन ठीक अछि दीटा फ्रिंज होची सो आमे एमदी लिखि परिए को ना 3500 into n minus 2 that is equal to 2500 into n लिख पारिबा सो याकू जदि मु सॉल्व करबी तो ए दीटा पार्ट को जदि एटा केते 3500 n एटा होची 2500 n 3500 रु 2500 गले केते 1000 n सो 1000 n होची केते 3500 रे 2 मल्टीप्लाई गले 7000 सो दिस इज 7000 सो n टा होची केते ना 7 n ର वैल्यू केते 7 आसी गला तो वी कैन से दैट 7th ऑर्डर फ्रिंज ऑफ द फर्स्ट सोर्स it will coincide with the 5th order fringe of the second source so this is our correct answer कहीं कहलो देखो गोटे आमे नहीं एन आगुड़े आमे निजे नहीं n - 2 तुम n - 2 n - 3 जहाँ भी नहीं पार तो ताने कौन गोटे 7th फास्ट सहित n - 2 मान के 5 सो 5th ऑर्डर टा कौन हम ना सेकंड सहित कोइंसाइड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि intensity ratio of the maxima and minima in an interference pattern produced by the two coherent sources that is 9/1 9:1 intensity टा पचाची intensity ratio
अच्छा ये आम कौन ना सिंपली आई मैक्स बै आई मिनिमम जदि देखा आई मैक्स डिवाइडेड बै आई मिनिमा सो दैट इज इक्वल टू केते ना ए प्लस बी रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी रो होल स्क्वायर ओके सो आई मैक्स बै आई मिनिममटा हूँ के 9/1 सो दैट इज इक्वल टू के यार मुझे रूट ओवर डायरेक्ट करदेवी दैट इज योर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी आम ए बी नियंतु कि ए1 ए2 नियंतु जहाँ भी ना हम सो 9/1 रूट ओवर के यहाँ हूँ 3/1 सो यार भैल्यूटा के ना दैट इज योर 3/1 ठीक अच्छे तो ये आम देखिए जब या मुझे सल्व करी फर्दर सो आई कैन राइट इट आमर कौन ए प्लस बीटा हूँ 3 ए माइनस बीटा 1 ठीक अच्छे आम ये मुझे लिख दूँ ये डायरेक्टली 3a माइनस 3b मुझे मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी सो 3a रु a गले के 2a दैट इज इक्वल टू 4b तो ये 2 सहित 4 कैंसल है दिस इज 2 सो दैट इम्प्लाइज a बाय bटा हूँ आमर के ना दैट इज इक्वल टू 2/1 ये आम इंटेंसिटी रेशियो पचार i1 बै i2 रो i1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय i2 स्क्वायर सो दिस इज सिंपली 4/1 तो आमर करेक्ट आंसर के ना 4:1 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न द फर्स्ट मैक्सिमम फॉर द इंफ्रारेड लाइट वुड बी से कुछ जो गोटे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होची तो से फास्ट मैक्सिमम फॉर द इंफ्रारेड लाइट वुड बी कौन ना इट विल बी फार्दर फ्रॉम द सेंटर देन द फास्ट मैक्सिमम फॉर द ग्रीन लाइट द नेक्स्ट क्वेश्चन this in a double slit experiment the distance between the slit is d the screen is at a distance capital D from the slit if a bright fringe is formed opposite to one of the slit the order टा केते अच्छा जेतेले ब्राइट फ्रिंज अछि जेतेले बनुछि इट इज ऑपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट सो x तो देछि केते ना d/2 ठीक अछि पाथ डिफरेंस टा हमें कोन लिख परिया ना पाथ डिफरेंस टा हमें कोन लिख परिया ना दैट इज इक्वल टू x d डिवाइडेड बाय कैपिटल D x रो वैल्यू जदि मैं पुट करी सो दिस इज d/2 इनटू d बाय कैपिटल D तो यहाँ है केते ना d²/2d ओके पाथ डिफरेंस टाइम कैलकुलेट करदे ये पचार कौन ना nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज अच्छा nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज माने x जगह मुझे कौन लिखुची ना n लैम्बडा लिखुची सो दिस n लैम्बडा पाथ डिफरेंस होची केते हमर पाथ डिफरेंस इक्वल टू हमर d²/2d पाथ डिफरेंस n लैम्बडा ओके सो दिस n लैम्बडा विल बी इक्वल टू d² डिवाइडेड बाय 2d और ये हमर n टा केते हो ना d²/2d लैम्बडा तो आम फाइनल आंसर के ना दिस इज d²/2d लैम्बडा सॉरी ये आम 2 कैपिटल D लैम्बडा ये आम कैपिटल n जस्ट मिनिट लैम्बडा विल बी इक्वल टू सॉरी n विल बी इक्वल टू d²/2d बाय लैम्बडा ठीक है ये कैपिटल D अच्छे ना सो बी केयरफुल सो दिस इज d²/2d लैम्बडा देखो तार नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पूरा है सी ये डायरेक्टली पचार यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 10th maxima of wavelength lambda 1 at a distance y1 from its central maximum and 5th maximum of the wavelength lambda 2 is at a distance of y2 from its central maximum अच्छा y1 by y2 ठीक अच्छे तो ये आम जो y1 टा लिखा आमर y रो फॉर्मूला कौन कि y इक्वल टू n लैम्बडा d by d ठीक अच्छे कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d हूँ स्लिट रूट कैपिटल D हूँ कौन स्लिट और स्क्रीन डिस्टेंस टा अच्छा y1 टा तामने केते हो ना 10th मैक्सिमम कोची 10th मैक्सिमम इनटू लैम्बडा 1 कैपिटल D लैम्बडा 1 कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d ठीक अछि ओके तो आम जो y2 टा बाहर करिया y2 टा हो केते ना हम देछि 5th मैक्सिमम एटा 5th मैक्सिमम सो दिस इज 5 इनटू लैम्बडा 2 इनटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d जदि मु y1 by y2 नौची y1 by y2 करूची दिस 5 विल गेट कैंसल विथ दिस 10 दैट इज 2 बाकी कौन d by d सब कैंसल हो गला सो दिस इज अवर y1 by y2 केते हेबो ना दिस इज अवर 2 लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 ठीक अछि सो हमर आंसर कोटा हम ना दिस इज पचाची कोन सॉरी पचाची y1 by y2 सो y1 by y2 हो केते ना 2 lambda 1 by lambda 2 this is our correct answer okay next question देखिबो पचार जी what is the minimum thickness of the show film needed for the constructive interference in the reflected light if the light incident on the film is 750 nanometer
assume that the refractive index for the film is 1.33. अच्छा ये क्वेश्चन है कौन ना डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट 2 mu t इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 t मिनिमम पचाची सो t मिनिमम पे हो केते ना लैम्बडा विल बी इक्वल टू एटी 4 mu 2 मल्टीप्लाई हो गला सो दिस इज 4 mu लैम्बडा इज गिवन केते 750 नैनोमीटर जेहेतु आमर यूनिट नैनोमीटर अच्छे आमको किसी करिया दरकार नहीं डिवाइडेड बाय 4 इंटू म्यू इज गिवन 1.33 या कैलकुलेट कला पर यू विल गेट 141 नैनोमीटर दिस इज आवर आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए ए नैरो स्लिट ऑफ विड्थ 2 mm it is illuminated by the monochromatic light of wavelength 500 nanometer the distance between the first minima on either side on the screen is ये जो क्वेश्चन टा देछि एठी ता माने कोन हम ये जो विड्थ टा देछि सपोज ए देछि ठीक अछि लैम्बडा देछि 500 नैनोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा on either side on a screen at a distance of 1 meter तो ता माने एटा देछि केते ना कैपिटल डी टा दे देछि तो हम कोन कैलकुलेट करै छी डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा on either side on the screen so that will be equal to 2 lambda capital D divided by small a ओके एटा मु ए लिखु ठीक अछि सो एठी सिंपली हम कोन पुट करै छी ना जहाँ जहाँ सब वैल्यू देछि 2 into लैम्बडा वैल्यू देछि 500 नैनोमीटर सो दिस इज 5 into 10 power -7 लैम्बडा सॉरी हम कैपिटल डी देछि 1 मीटर डिवाइडेड बाय ए होछि हमर केते ना 2 mm माने 2 into 10 power -3 सो जति हम सब तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देबा विल गेट 0.5 मिलीमीटर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the interference of the light take place जदि interference होछि कोन हो ना this is the conservation of energy holds good and energy is redistributed the next question is which of the following is the path difference for the destructive interference एटी पचाछि कोन ना path difference destructive interference रे path difference टा केते so the answer will be 2n + 1 एठी हम सबले जानथे कोन ना जदि हमर destructive interference होछि path difference टा कोन हो ना this is the odd multiple of lambda by 2 so this is your 2n + 1 into lambda by 2 okay जदि हमर constructive थाए हम कोन सिंपली n lambda लिखन destructive होछि 2n + 1 into lambda by 2 let us see the next question देखिए in Young's double slit experiment the distance between the two sources is 0.1 millimeter the distance of the screen from the source is 20 centimeter and the wavelength is 5460 angstrom angular position of the first dark fringe पचाछि ठीक अछि first dark fringe रो angular position पचाछि so this theta 1 will be equal to this is equal to हमें कौन लिखिए ना that is 2n that is 2 into the angular position of the first dark fringe so this is 2 into 1 minus 1 into lambda by 2d so this will be lambda divided by 2d और याको जदि हम पुट करे 2 into 1 के 2 minus 1 so that is equal to lambda by 2d lambda दे दीची this is our lambda d टा हमरो केते दीची this is our 0.1 एटा देछि हमर कोन दिस इज आवर डी ताकू जदि हमें पुट कर दो सो हमें कैलकुलेशन कर परबा हमर आंसर केते हो ना 0.16 डिग्री द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि दीटा कोहेरेंट सोर्सेस अछि इंटेंसिटी रेशियो बीटा प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज विजिबिलिटी केते हो तो मुठी तो डायरेक्ट आंसर टा कहि परबी किंतु देखो केमति कैलकुलेट करबो ना जदि हमें इंटेंसिटी रेशियो लिखु जने i1 by i2 टा होछि कोन एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर सो दिस इज योर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू होछि कोन ना बीटा ठीक अछि और हमें लिख पारे कोन a by b टा होछि कोन रूट ओवर ऑफ बीटा बुझु जी a और b होछि कोन एम्पलीट्यूड ठीक अछि तो एठी जदि फ्रिंज विजिबिलिटी पछछि एक्चुअली विजिबिलिटी होछि कोन की विजिबिलिटी होछि i मैक्सिमम माइनस i मिनिमम डिवाइडेड बाय i मैक्सिमम प्लस i मिनिमम दिस इज आवर विजिबिलिटी ए फॉर्मूला मन रखो है ये सब तक देखो ये भी इम्पोर्टेंट केतबेले कहा भी माने न्यूमेरिकल एटा पचार दे परिबो सो एटी i मैक्स जगह में कोन पकेबा ना a + b रो होल स्क्वायर माइनस i मिनिमम जगह a - b रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिमिलरली कोन हो ना दिस इज a + b रो होल स्क्वायर प्लस a - b रो होल स्क्वायर तो आमे कोन जानछु जदि आमे एठी फॉर्मूला पके a + b रो होल स्क्वायर माइनस a - b रो होल स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू केते 4ab divided by a plus b whole square plus a minus b whole square this is your 2 into a square plus b square तो एटी 4 2 एटी गेट कैंसल दिस इज 2ab तो ता माने एटी मु जदी कोन करछि अगेन जदी b डिवाइड को एटी b स्क्वायर डिवाइड कर दोछि सो दिस विल बी केते हो ना 2
ए बाय बी डिवाइडेड बाय ये मु बी स्क्वायर थ्रू आउट डिवाइड कर दिस विल बी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1 मु कहीं कली ना ये मत जना अच्छे कौन ए बाय बीटा हूँ रूट ओवर बीटा ठीक अच्छे ये आम जानी कौन ए बाय बी रैल्यू हूँ रूट ओवर बीटा सो आई जस्ट वांट टू पुट दिस वैल्यू हियर से आम डिवाइड कर सो दिस विल बी 2 इंटू बीटा रूट बीटा सॉरी 2 इंटू रूट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 तो आम आंसर के ना यहाँ विजिबिलिटी जदि देते तुम डायरेक्टली फर्मुला मन रखिपर कहीं जब फ्रिंज रूट दे बीटा पचार सॉरी आमको विजिबिलिटी पचार ठीक अच्छे तो सही केस रे सो यू कैन कैलकुलेट दिस इज योर 2 रूट ओवर बीटा इंटेंसिटी रेशियोटा हूँ बीटा सॉरी इंटेंसिटी रेशियो जब आमको बीटा दे सो यू कैन कैलकुलेट द फ्रिंज विजिबिलिटी दैट इज 2 रूट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ठीक अच्छे या बेस्ड कौन डायरेक्टली जो क्वेश्चन आसो यू कैन पुट डायरेक्टली द वैल्यू दैट इज फ्रिंज विजिबिलिटी इक्वल टू इंटेंसिटी रेशियो दे देथियो जदी बीटा देन यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देछि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होछि with the light of wavelength 6000 angstrom when in 16 fringes occupy a certain region on the screen so कोछि जदि 24 टा फ्रिंज ऑक्युपाई कोछि सेम रीजन विथ अनदर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा देन लैम्डा केते एटा किछि भी नाही n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2 एति बस दिस इज योर lambda 1 देछि 16 फ्रिंज देछि फर्स्ट n1 टा दे देछि दिस इज n1 24 फ्रिंज दिस इज योर n2 गिवन lambda 2 पचाछि बुझिए ना लास्ट क्वेश्चन देछि कौन ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेव्स ऑफ वेवलेंथ देछि केते ना 5.4 into 10 power 2 nanometer and 68.5 into 10 power 1 nanometer are used in turn keeping the same geometry of the setup ratio of the fringe width dita case रे केते पचाछि simple question you know beta equal to d lambda by d so beta is directly proportional to lambda so you can write beta 1 by beta 2 that is equal to lambda 1 by lambda 2 ठीक अच्छे मुझे जल्दी कर दूसरी यहाँ ये मुझे 100 थर कही सारे ये कौन वेवलेंथटा हूँ आमर लैम्डा 1 ये सेकेंडटा हूँ कौन दिस इज योर लैम्डा 2 ये दे दीजिए सो सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू दैट इज 5.1 सॉरी 5.4 into 10 power 2 डिवाइडेड बाय अच्छे कहते ना 68.5 into 10 power 1 दुटा तो नानोमीटर अच्छे तो आउ कुछ कन्वर्ट करें दरकार सो या आम कैंसल करवा 7.9 आंसर आस सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर बुझीगला सो रेशियो ऑफ द फ्रिंज विड्थ केते होबा ना 7.9 सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी डिफ्रैक्शन क्वेश्चन तो आम नेक्स्ट बाकी जहाँ भी किसी रहा अल्प किसी क्वेश्चन रहीगला तो से जेहेतु ये 1 hour एभव हो गला तो दिस इज ऑल फॉर टुडे तुम निजे दीटा पार्ट कर देख कि जमती कर जहाँ देखी कि आटलिस्ट ये सब तो क्वेश्चन तुम देखी जावा कथा सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू।